Good morning, good afternoon students. आज ਆਪਾਂ पढ़ेंगे alkylation of the ethyl acetoacetate that is acetoacetic ester synthesis। तो क्या ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ क्या ਕੀਤਾ ਡਾਈਥਾਈਲ ਮੈਲੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਲੋਨਿਕ ਐਸਟਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੀਟੋਐਸੀਟਿਕ ਐਸਟਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੋਐਸੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਕੀਟੋ ਐਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰੀਜੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਲੋਨਿਕ ਐਸਟਰ its molecule also contain alpha hydrogen between two carbonyl group which is acidic in nature। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੋਨਿਕ ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਲਫਾ, ਇਹ ਅਲਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ CH2 ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CH3 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ CH2 ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਕਟਿਵ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਾਈਨ ਦੀ ਕਾਰਬੋ ਐਨਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੋਲੇਟ ਐਨਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਨੇ क्या करना है ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ -BH ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ, ਤਾਂ ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ acetoacetic ester can be converted into monodialkyl derivative in two step by enolate anion। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋ ਔਰ ਡਾਈਅਲਕਾਈਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੂ ਸਟੈਪ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨੋਲੇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨੋਲੇਟ ਅਨਾਇਨ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੀ ਇਨੋਲੇਟ ਦੀ। ਇਨੋਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨੋਲੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਇਨੋਲੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੋਲੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਥੇਨੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਲੇਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੋਨੋ ਅਲਕਾਈਲ ਐਸੀਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ ਦੀ। ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, NaX ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3COCHR, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਲੈ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ R ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। CHR COO C2H5 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋ ਡਾਇਲਕਾਲ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੋਨੋ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋ ਅਲਕਾਈਲ। ਡਾਇਲਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ R ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ RX ਨਾ ਕਰਨਾ, NaX ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ R ਆਏਗਾ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, CH3COR R-COO C2H5 NaX ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮੂਵ। ਸੋ ਮੋਨੋ ਔਰ ਡਾਈਲਕਾਈਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀਟੋਐਸਟਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ।
सब तो पहले देखो ये एसिटोएस्टर बहुत ही वर्सेटाइल सिंथेटिक एजेंट है और द सिंथेसिस ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एसिटोएस्टर इज नोन एज एसिटोएस्टर सिंथेसिस। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड दिंदा है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट method देखो ketonic hydrolysis, when the hydrolysis by the dilute aqueous alkali or acetoacetic ester or its mono or dialkyl derivative form the corresponding ester which readily undergo decarboxylation to yield ketone. That's why such hydrolysis is known as ketonic hydrolysis। क्या कहते हो कि तुसी या तो एसिटोएस्टिक एस्टर लेना या ਉਹਦਾ मोनो या डाइअल्काइल डेरिवेटिव ले लो। जे तो आप एसिटोएस्टिक एस्टर ले रहे हैं तो आप ये चीज़ लेनी है, अगर आप मोनो डेरीवेटिव ले रहे हैं तो आप ये चीज़ लेनी है, अगर डाइअल्काइल डेरीवेटिव ले रहे हैं तो ये चीज़ लेनी है अपने, ठीक है। सो कहते कि तुसी कोई चाहे तो तुसी एसिटोएस्टिक एस्टर ले लो या तो मोनो या डाइअल्काइल डेरीवेटिव ले लो, इनू डिल्यूट एक्वस एल्कली या फिर एसिड ਦੇ ਨਾਲ या तो एल्कली हो सकता या एसिड हो सकता, आप मोस्टली एल्कली लेंगे हैं उन्होंने डिल्यूट एक्वस एल्कली के नाल। डिल्यूट एक्वस एल्कली का मतलब क्या होएगा, NaOH हो गया, KOH हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। एवें दी चीज़ों रिएक्ट करना है और अपने को क्या आ जाएगा, पहला अपने को इनोलेट आएगा, इनोलेट तो अपने को जो फिर इनोलेट की अपने एसिड के नाल रिएक्ट करवाना है, ठीक है। अपने को क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, पहला इनोलेट बन गया, वेट इनोलेट नहीं बनेगा, फिर एसिटोएस्टिक एस्टर लोगे तो तुसी पहला उस चीज़ का सॉल्ट बन जाएगा, एसिटोएस्टिक एस्टर का सॉल्ट बन जाएगा, उन्होंने किसी प्रोटोनिक प्रोडक्ट के नाल यानी कि किसी एसिड नाल रिएक्ट करोगे तो उन्हें ने रिमूव हो जाना, इत्थे क्या लग जाना, हाइड्रोजन लग जाना, एसिड बन गया। तो उस तो बाद डीकार्बोक्सीलेशन करनी क्या आ जाएगा, कीटोन, क्योंकि हुण एंड प्रोडक्ट अपना कीटोन बनता है, इस करके आप इहनूं क्या कहते हैं, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि डिल्यूट एक्वस सोल्यूशन दे विच हो रहा है, एक्वस का मतलब वाटर, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द डीकार्बोक्सीलेशन ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर और इट्स अल्काइल डेरिवेटिव इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन टू द कीटो ग्रुप either just before or simultaneously with the loss of carbon dioxide। तो कहते कि जिथों ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ, ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, पहला हो जाएगा हाइड्रोजन की शिफ्ट होने तो पहला कीटोन बनने तो पहला होएगा या नाल दी नाल होएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगी या तो वो तो पहला हाइड्रोजन चल जाऊँगा या फिर नाल दी नाल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, नाल दी नाल वो शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। सो अपन ने किया, अपन ने इत्थे तो हाइड्रोजन चक्या, हाइड्रोजन कितने शिफ्ट करता इस पोजीशन पर, हुण इत्थे तो ऑलरेडी वो है ਜਿਹੜਾ हाइड्रोजन उत्ते जाऊँगा वो H पॉजिटिव अपने इलैक्ट्रॉन इनू दे के जाऊँगा, इत्थे नैगेटिव चार्ज। हुण जो ऑक्सीजन को दी वैलेंसी कंप्लीट है, जो H पॉजिटिव आइन जाऊँगा तो किहड़ा चार्ज आ जाऊँगा, पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है, ठीक है। तो आपां ने जिहड़ा CH और COO नैगेटिव दे विच वाला बॉन्ड है, उस बॉन्ड ने अपने इलैक्ट्रॉन किहनूं दे देने, कार्बन नूं। तो अपने बॉन्ड देख के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से बाहर अपने को इनोल फॉर्म आ जाएगी, इनोल फॉर्म तो आप टॉटोमेरिज्म कर देंगे, टॉटोमेरिज्म तो क्या हो जाएगा अपने को कीटो फॉर्म आ जाएगी। इनोल का मतलब इत्थे अल्कोहलिक ग्रुप होएगा, OH ग्रुप, ਉਹਦਾ क्या होएगा जो तुसीं टॉटोमेरिज्म करते हो, जिहड़ा ਉਹਦਾ हाइड्रोजन ਹੁੰਦਾ कित्थे शिफ्ट हो जाता है इस प्लेस के ऊपर, और इत्थे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस पर गल करते एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਟੋਐਸਟਿਕ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਮੋਨੋ ਅਲਕਾਈਲ ਜਾਂ ਡਾਈਅਲਕਾਈਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਐਲਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦ ਐਸਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਗੈਟ cleave to form a 2 molecule of carboxylic acid to form their salt। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ क्या लेता, अपने मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ले, किमें पता लग गया, क्योंकि जो अपने को एसिटिक एस्टर होंगे तो उत्थे CH2 होना था, हुण अपने इत्थे हाइक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लग गया, अल्काइल ग्रुप लग गया। सो अपने को क्या आ गया, हुण वो कहते जी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होंदी, इहनूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों कहते कि जो तुसी मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर नूं एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली किसी भी एल्कली सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड के नाल रिएक्ट करते हो तो क्या दिंदा तुहानूं एसिड एज अ प्रोडक्ट दिंदा है, एसिड आते हैं, ठीक है। सो अपने को क्या आ गया,
CH3ONA CH2CONA C2H5 आ दोनों एसिडिक सॉल्ट आ गए, ठीक है। ये एसिटिक एसिड सॉल्ट है, ये तो हायर प्रोडक्ट होएगा, ठीक है। डिपेंड करता किहड़ा आर ग्रुप लग्या इहदे नाल। सो इस करके इनू क्या कहा जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इहदे क्या बनते हैं, एसिड्स बनते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस नोन एज एसिडिक हाइड्रोलिसिस बिकॉज इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन। सब तो पहला हैगी है सिंथेसिस ऑफ मिथाइल कीटोन। तो अपन ने क्या करिया, अपन ने एसिटो एसिटिक एस्टर ले लिया, ठीक है। उन्होंने किहदे नाल रिएक्ट करवाना, बेस के नाल C2H5ONA दे नाल रिएक्ट करे। अपने को अल्कोहल बाहर रिमूव होगी, आ चीज़ रिमूव हो जाएगी अपने को। सॉरी ये नहीं रिमूव, अपने को इत्थे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। C2H5O नैगेटिव, H तो H पॉजिटिव जाएगा तो C2H5OH, अपने को क्या रह जाएगा CH3CO CH नैगेटिव COONA पॉजिटिव हो गया, CO C2H5NA पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये बन गया अपने को इनोलेट बन गया। इनोलेट ने हुण किधर किस चीज़ नाल रिएक्ट करना है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड दे नाल, ठीक है जी। सो उन्हें आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड दे नाल रिएक्ट करना। अपने को CH3CO जिथे ते अपन, क्योंकि हुण अपना पूरा आर ग्रुप है, RX ग्रुप है, ठीक है। आ पूरा ग्रुप आर है, आ BRX है। हुण आपां नूं पता कि जो मैं तुहानूं इस तों पहलां पढ़ाया सीगा कि जो आपां RX नाल करते हैं X NA दे नाल रिमूव हो जांदा, आर ग्रुप जिद्दां जाके जिथे नैगेटिव चार्ज उत्थे लग जांदा है। हुण अपना इस पोजीशन तो हाइड्रोजन गया, तो जो पूरे का पूरा ये आर ग्रुप सीगा कित्थे लग गया, जिथे तो अपना हाइड्रोजन रिमूव होया। फिर डिल्यूट NaOH नाल रिएक्ट करना है, तो इत्थे डिल्यूट NaOH नाल रिएक्ट करके क्या होगा, C2H5OH रिमूव हो जाएगा। आ वाली C2H5OH के नाल रिमूव हो, इत्थे क्या NaCO नैगेटिव, Na क्या लग जाएगा नाल पॉजिटिव। फिर क्या करना, तुसी उहदी प्रोटोनेशन करनी है H पॉजिटिव आयन दे नाल, H पॉजिटिव आयन ऐड करना और अपने नाल दी नाल सैमिटेनियसली डीकार्बोक्सिलेशन कर देनी। आ वाले प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा। अपने को फॉर्मेशन हो गई CH3CO CH2 CH CH3 CH3, अपने को 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन बन जाएगा। उस तो बाद गल करते हैं सिंथेसिस ऑफ 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटिक डाई कीटोन की। If the desire to prepare a diketone such as 3-methyl-2-pentanone, that is CH3CO CH CH3 CH2 CH3, which may be considered to have a methyl-ethyl derivative of acetone, which are acetoacetic acid should convert into the methyl-ethyl derivative, then subjected to the ketonic hydrolysis। अगर अपन ने डाइकीटोन बनाने हैं, डाई सब्स्टिट्यूट डाई कीटोन्स बनाने, यानी कि जिहदे 2 कीटोनिक ग्रुप लगे होणगे, तो उहदे लई आपां ने क्या करना, आपां ने पहला एसिटोएस्टिक एस्टर लेना है, उहनूं सब तो पहला कन्वर्ट करना मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव दे विच, फिर उहदी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करनी है, देन अपने कोल किसी दी फॉर्मेशन हो जाएगी डाई कीटोन्स दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एसिटोएस्टिक एस्टर ले लिया, उहदी बेस सब फर्स्ट स्टैप सब तो सेम आना, उहदी बेस नाल रिएक्ट करवानी है, तुसीं इनोलेट बनाना, इनोलेट नूं दोबारा फिर तुसीं किसी RX ग्रुप नाल रिएक्शन देनी है, तो अपने कोल क्या आ जाएगा, तुहाडे कोल मोनो अल्काइल डेरिवेटिव आ जाएगा। उस तो बाद असली प्रोसैस शुरू होने है। पहला एसिटोएस्टिक एस्टर लिता, उन्होंने किसी बेस नाल रिएक्ट करवाया, इत्थे तो हाइड्रोजन चल जाएगा, C2H5OH के रूप में बाहर आ जाएगा, इत्थे क्या रह गया, नैगेटिव चार्ज आ गया। अपने को CH3CO CH COO C2H5, इन्होंने सारे का ओवरऑल लिखा है, आंदा ये उपर है वैसे, पर आप बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम इत्थे भी लिख सकते हो। नाल Na पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने मिथाइल आयोडाइड नाल रिएक्ट करवाई, सोडियम तो आयोडाइड रिमूव हो जाएगा। अपने को CH3 हुण जिथे तो अपने को नैगेटिव चार्ज उत्थे जाके इन्हें CH3 ने अटैक करना है, CH3CO CH CH3 CO C2H5, ठीक है। फिर अपन ने क्या करना, अपन ने दोबारा तो फिर बेस नाल रिएक्ट करनी है, बेस नाल रिएक्ट करके अपने को जेड़ा ए वाला हाइड्रो, क्योंकि एक अपने को अल्फा हाइड्रोजन बचता है, ए वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इत्थे अपना किहड़ा चार्ज आ गया उरे नैगेटिव, नाल Na पॉजिटिव, फिर C2H5OH रिमूव हो जाएगा, इत्थे तो हाइड्रोजन इत्थे तो। फिर आप उन्होंने CH3 CH2 अपने इथाइल आयोडाइड नाल रिएक्ट करनी, सोडियम तो आयोडीन रिमूव हो जाएंगे, ये तक कित्थे लग जाएगा, सॉरी ये लग जाएगा इस कार्बन के उपर, अपने को CH3CO
CH3 ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ CH2 CH3 CO C2H ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ NaOH ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀਟੋਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂਟ ਐਕੁਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਐਲਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਟੋਨਿਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੂਟ NaOH ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ C2H5OH ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ क्या ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ CO ਨੈਗੇਟਿਵ Na पॉजिटिव, ये चीज़ आ गई। फिर अपन ने सैमिलटेनियसली दोनों रिएक्शन देनी है, ट्रांसफर अपन ने क्या करना है, H पॉजिटिव की एडिशन भी करनी है और डी कार्बोक्सिलेशन भी करनी है। सो H पॉजिटिव की एडिशन COOH इत्थे बन जाएगा, इत्थे H आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जिहड़ा ये चीज़ है ये इत्थों रिमूव हो जाएगी, ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगी, अपने को फॉर्मेशन आ गई CH3 CO CH3 नाल उरे क्या आ जाएगा CH CH2 CH3, आ वाली चीज़ इन्होंने ऊपर जाके लिखती है, रीअरेंज करता। उस तो बाद देखो एसिटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सब तो पहला सिंथेसिस मोनो अल्काइल डाई अल्काइल एस्टिक एसिड, ठीक है। तो अपन क्या करना है, अपन ने पहला एसिटो एस्टिक एस्टर लेना है, उदू अल्कोहल दे उन्होंने बेस के नाल रिएक्ट करना किसी नाल, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड नाल रिएक्ट किया, अपने को इनोलेट बन गया, इत्थे तो हाइड्रोजन जाएगा तो अपना नैगेटिव चार्ज किस पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने किसी RX नाल आ पूरा ग्रुप R है नाल ब्रोमीन लगा, RX के नाल रिएक्ट करना, NaBr रिमूव हो जाएगा, जो R ग्रुप है कितने जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, CH2 CH2 CH3। फिर अपन ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या होना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होनी है, जिवें ਆਪਾਂ डाई कीटोन बनाने के लिए अपन ने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की थी, तो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस लिए अपन ने क्या करना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है जी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके अपने को क्या बनता, दो तरह दो एसिडिक बनते, एसिडिक सॉल्ट बनते नाल क्या अल्कोहल रिमूव होती है, तो इत्थे अपने को दो एसिडिक सॉल्ट बन जाने, अल्कोहल ने रिमूव हो जाना। हुण एसिडिक सॉल्ट तो अपने एसिड्स बनाने हैं, तो अपने को जो H पॉजिटिव नाल रिएक्ट करूँगे, नॉट ओनली H पॉजिटिव इतने OH नैगेटिव भी होंगे, ही NaOH रिमूव होएगा, ठीक है। सो H कितने लग जाएगा, OH ये चल जाएगा NaOH नाल, सिमिलर वे इत्थे भी OH होएगा, आप लिखते नहीं है पर मैं थोड़ा समझाने नहीं दस रही हूँ। वो इन्हें सोडियम ने OH नाल रिमूव होना, हाइड्रोजन किधर को चल जाना इस COO नैगेटिव पर, अपने को एसिटिक एसिड बन जाएगा, एक N वल्रिक एसिड बन जाएगा। जिस तरह सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वही सेम एसिटो एस्टिक एस्टर लेना है, बेस नाल रिएक्ट करवानी है, इनोलेट बन जाएगा, नैगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर उन्होंने RX के नाल रिएक्ट करवाना, दैट इज ये पूरा कंपाउंड क्या होगा अपना R नाल X क्या लगेगा क्लोरीन, NaCl रिमूव हो जाएगा, CH2 CO C2H5 कितना जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के नाल CH। फिर वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, अपने को सॉल्ट आएंगे, ठीक है, दो सॉल्ट आ जाएंगे एसिड्स के, एक अपने को अल्कोहल क्या हो जाएगा रिमूव, फिर वो दोबारा तो उन्होंने हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है, OH नैगेटिव NaOH रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने जाके लग जाएगा CH3 COH के नाल। सिमिलर वे ये अपन नूं दो मॉलीक्यूल्स चाहिए, इत्थे दो मॉलीक्यूल चाहिए दोनों के, ठीक है, दोनों के नाल Na पॉजिटिव रिमूव OH तो रिमूव हो जाएगा, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड लग जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे वाली साइड लग जाएगा, अपने को एसिटिक एसिड और सक्सेनिक एसिड बन जाएगा। हाँ, उस तो बाद देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लेंजन कंडेंसेशन, ये पेपर च आती है, ये नेम के थ्रू ही आती है। वो कहते जो एसिटो एस्टिक ਜਿਹੜਾ एसिटो एसीटेट है is obtained by the condensation of two molecules of ethyl acetate in the presence of sodium ethoxide. The sodium salt initially formed is acidified to get ethyl aceto acetate। कहने ਜਿਹੜਾ sodium aceto acetate है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਣੇ ਆ ethyl acetate ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣੇਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸਿਡਿਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੋ ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੋ ਐਸੀਟੇਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੋ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। क्या होएगा हुण देखो इत्थे इनू मैं ओपन इत्थे तो हाइड्रोजन कट के इत्थे लिख दें डबल बॉन्ड, ये तो नैक्सट कार्बन यही है CH3, ठीक है, इन्हूं तुसीं एवें भी लिख सकते हो। नैक्सट कार्बन तो यही है ना, यही अल्फा कार्बन, इत्थे तो हाइड्रोजन रिमूव होएगा, C2H5ONa, ठीक है, C2H5OH रिमूव हो जाएगा, इत्थे तो हाइड्रोजन चला गया, तो अपने को CH इत्थे क्या रह गया,
ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ चला गया अपने को तो अपने को CH3 CO CH CO C2H5 रह गया इतने पर नैगेटिव इतने होएगा अपने को अल्कोहल मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो अपने इस चीज़ की क्या करती अपने एसिडिफाइड करता इस चीज़ ठीक है जो अपने को सोडियम सॉल्ट बनया उन्होंने एसिडिफाई करता एसिडिफाई करके क्या हो गया NaOH रिमूव हो गया जिथे अपने को नैगेटिव चार्ज से उत्थे क्या गया CH3 CO CH2 CO C2H5 आ गया ठीक है अपने को बन गया इथाइल एसीटो एसीटेट इनू कहते हैं क्लेंजन कंडेंसेशन हुण इहदा मैकेनिज्म देखो वो कहते इन द फर्स्ट स्टैप ऑफ द क्लेंजन कंडेंसेशन द ethoxide ion remove a proton from the alpha carbon of ethyl acetate to form a resonance stabilized inolate anion फर्स्ट स्टैप क्या होना है कि इथाइल एसीटो एसीटेट ते जो सोडियम इथोक्साइड दोनों आपस रिएक्ट करेंगे सोडियम इथोक्साइड किस चीज़ फॉर्मेशन कर दूंगा आप इतने दोनों ने प्रोटोन चक लेना सोडियम इथोक्साइड ने इथाइल एसीटेट चो तो किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देनी इनोलेट की दी स्ट्रोंगली न्यूक्लियर फिर इनोलेट ने अगे अपने आप को स्टेबलाइज करना रेजोनेंस स्टेबलाइज इनाइन बना देना इनोलेट अनाइन बना देना द स्ट्रोंगली न्यूक्लियोफाइल अनाइन अटैक द carbon of second molecule of the ester to form a carbonyl additional intermediate. This intermediate eliminate ethoxide ion to form the ketoester that is ethyl acetoacetate in this case. देखो अपन रिएक्शन देखते हैं इतने कंफ्यूज नहीं होना ਇਹਦਾ मतलब C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव है सिर्फ इन्होंने Na नाल शो नहीं किया अपन इन्हें C2H5O नेगेटिव भी लिख सकते हैं सो अपन ने सोडियम इथोक्साइड लेता C2H5O O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम इथोक्साइड लेता सोडियम इथोक्साइड ने क्या करना है अपने को क्या है इथाइल एसीटेट अपने को दो मॉलिक्यूल अपन इतने एक मॉलिक्यूल यूज़ किया CH3 होंगे फार्मूला CH3 COO C2H5 अपन ने CH3 को ओपन करके लिख लिया CH2 नाल एक हाइड्रोजन लिख लिया नाल CO डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसीटेट है इथाइल एसीटेट है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਅਲਫਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ C2H5OH ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ CH ਨੈਗੇਟਿਵ CH2 ਨੈਗੇਟਿਵ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O C2H5 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ क्या करना उन्हें एक बन के इनोलेट अनाइन बन गया इन्हें कहना अपने आप को स्टेबलाइज करना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाली नैगेटिव चार्ज इतने शिफ्ट होना आ नैगेटिव इतने चल जाना अपने को CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन जिथे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सीगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए इलैक्ट्रॉन किहदे कोल चले गए ऑक्सीजन कोल और जिथे कार्बन सिंगल बॉन्ड सीगा उत्थे डबल बॉन्ड आ गया O नैगेटिव O C2H5 ठीक है हुण उस तो बाद जिहड़ा इनोलेट अनाइन बनिया उन्हें दोबारा तो अपने को दो मॉलिक्यूल सीगे इथोक्साइड दे इथाइल एसीटेट दे आपां ने यूज़ किया सिर्फ एक मॉलिक्यूल हुण जिहड़ा आ सीगा अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल ए सीगा अपना सैकेंड मॉलिक्यूल हुण जिहड़ा सैकेंड मॉलिक्यूल है उन्हें रिएक्शन देनियां ने क्या करें आपां ने ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਥਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨੋਲੇਟ ਅਨਾਇਨ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ CH3 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਨੀਚੇ O C2H5 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ CH2 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O C2H5 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ CH2 C2H5O ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ कार्बनिल एडिशनल इंटरमीडिएट बन गया हुण क्या किवें रिमूव होना हुण ऑक्सीजन पर नैगेटिव है दैट मीनस अनस्टेबल है उन्हें अपने आप को स्टेबल करने इलैक्ट्रॉन किहनूं दित्ते कार्बन उत्थे डबल बॉन्ड बन गया हुण कार्बन की वैलेंसी 5 दी तो हो नहीं सकती तो अगर इस चीज़ को रिमूव करूँगा तो बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप रिमूव होना इस करके ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो इन्हें किहनूं रिमूव किया O एज a C2H5O नैगेटिव के रूप में ठीक है अपने को फिर जो ये चीज़ रिमूव होगी अपने को फॉर्मेशन होगी CH3 कार्बन C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H इथाइल एसीटो एसीटेट थी ठीक है जी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀਟੋਇਨੋਲ ਟੌਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਆਫ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੋ ਐਸੀਟੇਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀਟੋਇਨੋਲ ਟੌਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ यानी कि इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं जिस इट मे बी रिकॉल दैट टॉटोमैरिज्म इज अ टिपिकल फिनोमिना इन विच आइसोमरिक कंपाउंड हैविंग कंसिडरेबली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एग्जिबिट डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। टॉटोमैरिज्म दा मतलब है कि दो एक आइसोमरिक कंपाउंड दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, यानी कि मॉलिक फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या है उन्होंने अरेंजमेंट डिफरेंस आ जाता एटम्स की। एग्जिस्टेंस डायनेमिक पर दोनों होंगे इक्विलिब्रियम च, दोनों की स्ट्रक्चर दोनों की क्या होंगे इक्वैलिटी होंगी है। द इंटर कन्वर्टिबल कंपाउंड विच आर इनवॉल्व इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, एवं के कंपाउंड जो एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म से इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकते हैं और इक्विलिब्रियम से एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं आप टॉटोमर्स। द स्ट्रक्चर ऑफ टॉटोमर जनरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मेनली इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द वन ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। तो सिर्फ डिफरेंस कितने आता है कि कोई एक पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होएगा एक उसकी जगह डिफरेंट होएगी, ठीक है। एक जिवें ऑक्सीजन के नाल लिखा, दूसरी जगह वो कार्बन के नाल लिखा होगा, हाइड्रोजन की गल करें। फॉर इंस्टेंस द कीटोइनोल टॉटोमैरिज्म विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉटोमैरिज्म, द टॉटोमर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। कीटोइनोल टॉटोमैरिज्म क्या होंदा है, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन किस चीज़ नाल अटैच होगा वो डिफरेंस आता है। इनोल फॉर्म से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाल अटैच होंदा, कीटो फॉर्म से किस नाल अटैच होंदा कार्बन के नाल। We could confirm our discussion in this type of tautomerism only। आप सिर्फ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म ही पढ़ांगे। तो कहने एसिटोएस्टिक एस्टर या एसिटोएस्टिक एसीटेट, एसिटोएस्टिक एस्टर afford a very prominent example of the substance which exhibit ketoenol tautomerism। Ordinary acetoacetic ester is represented by the structure formula shown below which contain a ester group and a carboxylic group। So अपने को CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO C2H5, ठीक है। अपने को अगर आप ऑर्डनरी एसिटोएस्टिक एस्टर की गल करिए तो वो क्या होंगे, एक एस्टर ग्रुप होंगे, एक कार्बोनिल ग्रुप होंगे। आ एस्टर ग्रुप है, ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है। दिस प्रेजेंटेशन इज इन कीपिंग विद द बिहेवियर ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर एज अ कीटो एस्टर। तो ये किस तरह बिहेव करता है, कीटो एस्टर की तरह भी बिहेव करता है एस्टर। सो लाइक एस्टर इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये एस्टर की तरह बिहेव करेगा, इनोल फॉर्म से एस्टर की तरह बिहेव करता है, कीटो फॉर्म से कीटोन की तरह बिहेव करता है। अगर एस्टर की तरह बिहेव करता अपन कितने पता लग जाएगा, ये ईजिली हाइड्रोलिसिस करके क्या बना दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा। अगर ये कीटोन की तरह रिएक्ट करेगा तो क्या होएगा, रिएक्ट विद साइनाइड हाइड्रोक्सिलामीन एंड फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रीन ऑक्सामाइन और फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। अगर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए दैट मीनस ये क्या है, एस्टर तरह बिहेव कर रहे अपना कीटो एसिटोएस्टिक एस्टर। अगर वो साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करोगे तो अगर उन्हें साइनोहाइड्रेट बना लिया दैट मीनस वो कीटोन आ। अगर वो हाइड्रोमीन के रिएक्ट करके एग्जाइम बना तो भी वो कीटोन है। अगर फिनाइल हाइड्रोजन के रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्राजोन बना तो भी क्या है, वो कीटोन है। सो ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है नीचे। ये एसिटोएस्टिक एस्टर है अपना, एसिटोएस्टिक एस्टर है अपना। अगर उन्होंने हाइड्रोसाइनाइड रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन बना लेगा। आप हाइड्रोक्सिलामीन ना करांगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइन बना लेगा। अगर आप फिनाइल हाइड्रोजन ना क्या करांगे रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। To explain the above fact, it is postulated that acetoester ester is an equilibrium mixture of two form। क्यों ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट दिंदा है, तो कहते दैट मीनस ये दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करने चाहिए ਤਾਂ ਹੀ एसिटो, अगर आप एसिटोएस्टिक एस्टर ਨੂੰ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ कार्बोक्सिलिक एसिड दोगे, दैट मीनस वो एस्टर दिंदा है। ਹੁਣ एस्टर और कीटोन की तरह क्यों बिहेव करता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ फॉर्म्स, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म विच आर इंटर कन्वर्ट वैरी रैपिडली, जी ईजिली एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती है। अगर इन्हें एक फॉर्म स्टेबल नहीं लगती तो दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट होगा, दूसरी फॉर्म स्टेबल लगती तो पहली वाली फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा। सो कीटो फॉर्म आ गई CH3 COO C डबल बॉन्ड O CH2 CO C2H5। इनोल फॉर्म से इतने तो हाइड्रोजन कितने शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के इतने डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देखो कीटो फॉर्म से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इनोल फॉर्म से डबल बॉन्ड कितने आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, इतने सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देखो CH3 COH C डबल बॉन्ड CH
CO C2H। किहदा फर्क है इस एक हाइड्रोजन का, अगर मैं इत्थे हाइड्रोजन एवें लगाता सिर्फ इस हाइड्रोजन की पोजीशन दे विच अटैचमेंट पोजीशन ऑफ अटैचमेंट फर्क है। इनोल फॉर्म च कीटो फॉर्म च कार्बन के नाल अटैच है, इनोल फॉर्म च ये ऑक्सीजन के नाल अटैच है। कीटो फॉर्म अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ कीटोन वाइल इनोल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनोलिक करैक्टरिस्टिक्स। कीटोनिक फॉर्म है, तुसी कीटोनिक फॉर्म अच्छा तो हाइड्रोजन रिमूव कर देना, अपने को CH3C अपने को क्या बन गया CH3 मैं दिखा दी C डबल बॉन्ड O CH नैगेटिव C डबल बॉन्ड O O C2H5 ये बन गया। हुण इन्होंने ये इनोलिक इनोलेट किवें बनाया, एक बारी इन्हूं इत्थे शिफ्ट कर दो, इन्हूं इत्थे अपने को बन जाएगा CH3 CO नैगेटिव डबल बॉन्ड CH O C2H5। दूसरी पोजीशन क्या करना, इन्हूं इत्थे शिफ्ट कर दो, इन्हूं इत्थे लिया, अपने को फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O O दैट मीनस एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन ते आ रहा है, एक बार इस ऑक्सीजन ते आ रहा है, इस बार एक बार एक पोजीशन ते आ रहा है, दूसरी बारी उस पोजीशन ते आ रहा है। सो अपन इन्होंने रेजोनेंस टेप हाइब्रिड च लिख लिया, ठीक है। हुण क्या करना है, इनोल फॉर्म किमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन निकलिया इन्हें कितने जाके अटैक करना एक ऑक्सीजन के उपर, दूसरा ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी ऑटोमैटिकली कंप्लीट करनी, तो किमें कन्वर्ट हो गया इनोलिक फॉर्म के विच। उस तो बाद देखो एसिड बेस catalysis of ketoenol to automerism। Ketoenol converted is very highly strongly catalyzed by ketoenol interconversion is very strongly catalyzed by the presence of acid and base। हमेशा acid और base की presence होएगा। This is because very effective role which acid and base can play to these interconversion। क्योंकि सिंपली कन्वर्ट करना किसी चीज़ में पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ कोई ना कोई रिएक्टर ऐड करूँगा तो ही वो पोजीशन चेंज करूँगा। तो या तो एसिड की प्रेजेंस होएगा या बेस की। जो पहले देखते हैं बेस की प्रेजेंस, अपन द बेस सब्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम आइदर कीटोन और इनोल टू फॉर्म अ रेजोनेंस स्टेबलाइजर आयन। द आयन इमीडिएटली रिकम्बाइन विद हाइड्रोजन आयन। इफ द रिकम्बिनेशन occur at carbon, the keto form obtained। On the other hand, if the recombination at oxygen, I yield the enol form। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पूरा लिखा ना, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बेस को सबस्ट्रैक्ट कर लेना इत्थे तो, ठीक है। उन्हें एसिटो एस्टर लेना, एसिटो एस्टर का उन्होंने सिर्फ एक पार्ट लेता है, एक पार्ट सपोज कर लो इन्होंने एक पार्ट लेता है, एक हाइड्रोजन लेता है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ जर्नल की एग्जाम्पल दी हुई है कि अपने को कोई कीटोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो ना, कार्बन अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन अटैच है। वो कहते कि अगर तो बेस हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपने को एक इनोलिक फॉर्म आ जाएगा, इतने नैगेटिव चार्ज आ गया, तो नैगेटिव चार्ज खत्म करने लिए इन्हें इत्थे चला गया, ये इत्थे शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक बारी डबल बॉन्ड इत्थे आंदा, एक बारी इत्थे, दैट मीनस दोनों पर पार्शली डबल बॉन्डेड करैक्टर है, ठीक है। फिर क्या करना उन्होंने, अगर तो उस तो बाद जो बेस ने हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट किया, अगर तो वह कीटो OH ग्रुप के नाल लगता है, ऑक्सीजन के नाल हाइड्रो जो बेस ने प्रोटोन ऑब्स्ट्रैक्ट किया, अगर वो हाइड्रोजन दोबारा टुटन तो बाद, बेस नालों टुटन तो बाद अगर तो ऑक्सीजन नाल जाके लगता तो इनोल फॉर्म बनेगी, अगर वो कार्बन के नाल जाके लगता तो किहड़ी फॉर्म बनेगी, कीटो फॉर्म बन जाएगी। उस तो एसिडिक की गल करते हैं, ठीक है। वो कहते द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोजन आयन इज टेकन अप आइदर ऑफ द कार्बोनिल बॉन्ड ऑफ द कीटो फॉर्म और द इथाइलेनिक बॉन्ड ऑफ द इनोल फॉर्म टू यील्ड द कीटाइन, ठीक है। वो कहते हुण इन्होंने देखो एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो कहते कि उन्होंने पहला अपने कीटो फॉर्म ले ली, कीटो फॉर्म हाइड्रोजन रिएक्ट करा, हाइड्रोजन कितों है, एसिड तो, कोई भी एसिड HCl हो सकता है, ठीक है, H2SO4 हो सकता है, HNO3, कोई भी एसिड, उत्थे तो हाइड्रोजन लता, ठीक है। हुण क्या किया, जो हाइड्रोजन उन्हें कितने जाके अटैक, क्योंकि इतने लोन पेयर पे होंगे हैं, एक्सैसिव इलेक्ट्रॉन तो ये कोले, तो इन्हें इतने जाके अटैक करना, अपने को कैटाइन बन गया, कार्बो कैटाइन बन गया, ठीक है, सॉरी सो अपने को सिंपल कैटाइन नॉट कार्बो, अपने को सिंपल कैटाइन बन गया। हुण वो कैटाइन जो हाइड्रोजन छड्डना है, ठीक है, फ्रॉम द एसिड,
हाँ उस तो बाद जो कीटाइन बन गया ਇੱਥੇ मैं कीटो फॉर्म लती तो कीटोन ਤੇ आ गया अगर वो कहते कीटाइन बन गया अगर जो हाइड्रोजन आ वो ऑक्सीजन को लूस होवे तो अपने को किस चीज़ की फॉर्मेशन होनी है तो कीटोनिक फॉर्म की हो जानी अगर वही हाइड्रोजन कितों लूज होवे कार्बन तो लूज होवे तो इनोल फॉर्म अगर ऑक्सीजन तो जावे हाइड्रोजन तो कीटो फॉर्म अगर कार्बन तो जावे हाइड्रोजन तो इनोल फॉर्म जित जो कीटाइन है वो ठीक है जी। उसके बाद देखो लास्ट टॉपिक है अपना एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डायाथीन 1,3 डायाथीन क्या होंगे डायाथीन का मतलब थाइंस का मतलब सल्फर ठीक है यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगे होंगे सल्फरिक ग्रुप होंगे 1,3 डायाथीन दैट मीनस एक साइकिल ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगे होंगे सल्फर मॉलिक्यूल उन्होंने नाल क्या होएगा हाइड्रोजन होएगा सल्फर के नाल सो 1,3 डायाथीन जो तुसी एनबिटाइल लिथियम ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ 1,3 डायाथीन ਅਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 1,3 diathene is a non-aromatic heterocyclic compound containing two sulfur atom at position 1 and 3 in the ring which contain only single bond सिर्फ single bond होंगे that's why it's named 1,3 diathene two sulfur atom at the 1 or 2 position in मतलब that means ring is a saturated डायाथीन क्योंकि अगर डायाथीन का मतलब 1 और 3rd पोजीशन पे क्या लगे हुए ने सल्फर और इन का मतलब कि रिंग सैचुरेटेड कोई डबल बॉन्ड नहीं हैगा द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बन 2 विच इज अटैच टू द 2 सल्फर एटम आर फाउंड टू बी मोर एसिडिक दैन हाइड्रोजन ऑफ द ऑर्डनरी अल्काइल ग्रुप जेडे कार्बन हुण इत्थे कार्बन है इत्थे कार्बन पई है वो कहते जिहड़ी कार्बन दोनों सल्फर्स दे मिड च पई है वो ज़्यादा एसिडिक होएगी एज कंपेयर टू हो जिहड़े बाकी अल्काइल ग्रुप नालों This is because the sulfur atom can easily polarize and they help in stabilizing the negative charge of the anion formed by the deprotonation of 1,3 diathene ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫਰ ਆਇਨ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਅਨਾਇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਸੋ ਡੀਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਅਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਰੀਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्काइल लिथियम रेजन 1,3 डायाथीन ले लिया उन्होंने एनबिटाइल लिथियम के नाल रिएक्ट किया अपने को 1,3 डायाथीन अनायन आ गया तो बिटीन क्या हो गया रिमूव हो गया ठीक है हुण क्या करना जो सल्फर है उन्हें इस जो नैगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज कर लेना अल्काइलेशन ऑफ 1,3 डायाथीन हुण जो 1,3 डायाथीन अनायन आया उसकी अल्काइलेशन करनी है ये नाइन बन गया अपने को मोनो भी बन सकता डाई भी बन सकता है अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है तो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा अगर दोनों रिमूव हो गए तो डाई अल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा 1,3 डायाथीन का दोनों हाइड्रोजन रिमूव तो जो अपने को 1,3 डायाथीन अनाइन आया उसकी अल्काइलेशन करनी है तो जिथे तो अपने को हाइड्रोजन कितने क्या लग जाएगा आर ग्रुप दोबारा तो क्योंकि अपने को एक हाइड्रोजन पे अपने फिर एनबिटाइल लिथियम में रिएक्ट किया अपने को दोबारा तो एक अनाइन बन गया उस अनाइन फिर उसकी अल्काइलेशन की अपने को क्या बन गया डाई अल्काइल डेरिवेटिव यूटिलिटिक सिंथेसिस ऑफ 1,3 डायाथीन प्रेपरेशन ऑफ हुण कित्थे कित्थे यूज होंदे आ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो तो कहते सी अल्काइल 1,3 डायाथीन ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋ ਅਲਕਾइल ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਕਾइल 1,3 डायाथीन ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਕਰੀਅਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਮਿਥੇਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਔਰ 1,3 प्रोपेन डाइथोल 1,3 प्रोपेन डाइथोल बन गया एल्डिहाइड बन गया अगर तुसी अगर मोनो लेंदे हो तो एल्डिहाइड बनता अगर उधर डाई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट लेंदे जिस दोनों हाइड्रोजन तुसी आर ग्रुप में रिप्लेस करते सिमिलर रीजन की प्रेजेंस के अपने को किस फॉर्मेशन होंगी है कीटोन की और बाय प्रोडक्ट सेम निकलता 1,3 प्रोपेन डाइथोल कंप्लीट रिएक्शन किमें होगी देखो पहला 1,3 डायाथीन ले लिया एनबिटाइल लिथियम में रिएक्ट करना है थोड़े को पहला अनाइन आएगा ठीक है 1,3 डायाथीन अनाइन आएगा फिर उसकी अल्काइलेशन करनी है अल्काइल 1,3 डायाथीन बन जाना फिर अपने को एक बार अपन से अगर आप एल्डिहाइड बनाना तो आप इतने तक रिएक्शन देनी है उस तो फिर अपने मरकीरियस क्लोराइड ठीक है मिथेनॉल तो वाटर की प्रेजेंस रिएक्शन देनी है तो अपने को एल्डिहाइड तो 1,3 प्रोपेन डाइथोल बन जाएगा अगर तुम कीटोन बनाना है तो 1,3 डायाथीन लेना है पहला एनबिटाइल लिथियम में रिएक्ट करना पहला एक अनाइन आएगा सिंगल अनाइन ठीक है एक हाइड्रोजन प्लस हो गया फर्स्ट अनाइन आ गया उसकी अल्काइलेशन करनी है थोड़े को मोनो अल्काइल मोनो डेरिवेटिव आ जाएगा फिर दोबारा तो एनबिटाइल लिथियम में रिएक्ट करनी थोड़े को सैकेंड वाला अनाइन आ जाएगा फिर सैकेंड वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया
फिर ਉਹਦੀ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ HgCl ਮਰਕਰੀਅਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮਿਥੇਨੋਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਟੋਨ 1,3 ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਡਾਈਥੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੀਨ। ਅਮੀਨਸ ਆਰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਅਮੀਨਸ which may be regarded as a nitrogen analogous of enol, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨੋਲ ਦੇ ਐਨਾਲੋਗਸ ਕਿਆ, ਇਨੋਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਨ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਅਮੀਨਸ ਨੇ, ਐਨਾਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਅਮੀਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲੋਗਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨੋਲ ਦੇ। ਐਨਾਲੋਗ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਨੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਕਾਰਬਨ, ਇੱਥੇ OH ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਐਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਫ ਇਨੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ ਵਿਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ। The intermediate amino alcohol initially form undergo acid catalyst dehydration which drive the reversible reaction to complete. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਮੀਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਐਨਾਮੀਨਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 R ਗਰੁੱਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ 2 R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਈਨੋ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਾਈਨੋ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਸਿਡ ਕੈਟਲਿਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, OH ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ R ਗਰੁੱਪ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦ ਐਨਾਮਾਈਨ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਮੀਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਾਇਰੋਲੋਡੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਪਰੀਡੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰਫਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਰੋਡੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਪਰੀਡੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋਰੋਫਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫॉर एग्जांपल द ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨੋਨ ਐਕਟ ਵਿਦ ਦ ਪਾਇਰੋਲੋਡੀਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਐਨਾਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨੋਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਰੋਲੋਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਮੀਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਾਮੀਨਸ ਆਰ ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਏਜੰਟ ਇਨ ਵਿਚ ਬੋਥ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਐਨਾਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਾਮੀਨਸ। ਐਨਾਮੀਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾਮੀਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਮਿਥਾਈਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰ ਬੈਂਜ਼ੈਲਿਕ ਹੈਲਾਈਡਸ ਨਾਲ। ਹੈਲੋਕੀਟੋਨ ਔਰ ਅਲਫਾ ਹੈਲੋ ਐਸਟਰ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅਲਕਾਈਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਐਨਾਮੀਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਾਈਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਥਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲਿਕ ਹੈਲਾਈਡਸ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, CH2 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈਲਾਈਡ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ का, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, CH2 R ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਕਾਈਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਕਾਈਲੇਟਿਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। यूटिलिटिक सिंथेसिस देख लो कितने कितने यूज होंगे। तुसी गिवन कोई एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, ठीक है, उन्होंने रिएक्ट करवाया सैकेंडरी अमीन दे नाल,
अपने को एनामीन्स बन गया। एनामीन की अल्काइलेशन करवाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट ना, चाहे मिथाइल ले लो, चाहे प्राइमरी अमीन ले लो, बेंजाइलिक हैलाइड ले लो, ठीक है। उस तो बाद थोड़े को अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गया, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करके अपने को सिंपल एल्डिहाइड कीटोन तो क्या बन गया, अल्काइलेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, और अपने को सेकेंडरी अमीन रिमूव हो गया। एसाइलेशन देख लो, ऑन ट्रीटेड विद द एसिड क्लोराइड, एसाइलेशन हमेशा एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस होंगी और एसिड अनहाइड्राइड अमाइन्स अंडरगो एसाइलेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। अमाइन ले लिया, एसाइल क्लोराइड ले लिया, फिर वही सिमिलर प्रोडक्ट नाइट्रोजन तो लोन पेयर कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ਨੂੰ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो किहदे कोल जांगे कार्बन एसाइल कार्बोनिल ग्रुप कोल ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ एसाइल क्लोराइड ਦਾ कार्बोनिल ग्रुप ਆ ਉਹਦਾ डबल बॉन्ड टुट के किहदे कोल चल जाएगा ऑक्सीजन कोल। सो ये ਇੱਥੇ डबल बॉन्ड आ गया, ਜਿਹੜਾ ਆਹ वाला पूरा प्रोडक्ट है किहदे नाल लग जाएगा, इस चीज़ ਦੇ ਨਾਲ, इस कार्बन अपने को फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट की। हुण इत्थों तो अपने क्लोरीन रिमूव कर देना, अपने को फॉर्मेशन होगी एसाइलेटेड प्रोडक्ट की, क्योंकि अमाइनियम सॉल्ट की, अमीनियम सॉल्ट की, ठीक है जी। इत्थों तो जो क्लोरीन रिमूव किया तो जो ऑक्सीजन पर नैगेटिव चार्ज सीगा उन्होंने वापस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। सिंथेटिक यूटिलिटी देख लो, प्रिपरेशन ऑफ एनामीन फ्रॉम द गिवन एल्डिहाइड कीटोन। एनामीन की प्रिपरेशन किसी एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन प्रेजेंस च होवे, अगर तुहाडे कोल कीटोन एल्डिहाइड पिया होवे तो तुसीं एनामीन बना सकते हो। एसाइलेशन ऑफ एनामीन विद द डिजायर एसिड क्लोराइड और एल्डिहाइड, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल प्रोडक्ट ऑफ द एसाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ द एनामीन्स। ਜਿਹੜੇ एनामीन्स ਆ ਉਹ डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ क्या ਹੁੰਦੇ ਨੇ, यूज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दैट्स ऑल, अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।